وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں انتہا پسند نظریہ رکھنے والی تنظیم RSS نے 1 ارب سے زیادہ آبادی والے ایٹمی ملک پر قبضہ کر لیا۔ RSS کا نظریہ نسلی برتری اور مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی ہے۔ اس جن کے بوتل سے باہر نکلتے ہی ہمیشہ خون خرابہ ہوا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور پولیس کی ظالمانہ کارروائیاں۔ بھارتی فورسز نے سری نگر میں جعلی سرچ آپریشن کی آڑ میں 30 سے زائد کشمیریوں کو حراست میں لے لیا۔ کشمیر میں جاری بھارتی کرفیو اور لاک ڈاؤن کو 160 روز گزر گئے۔ یوکرینی مسافر طیارے کو غلطی سے نشانہ بنایا، ایران نے اعتراف کر لیا۔ مسافر طیارہ ایرانی میزائل لگنے سے تباہ ہوا، 176 افراد ہلاک ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے متاثرین سے معافی مانگ لی، یوکرین نے معذرت مسترد کر دی۔ پاکستان کا عراق میں مسافر طیارے کے حادثے پر افسوس، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کل ایران کا دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا طیارہ حادثے میں معصوم لوگ جاں بحق ہوئے۔ امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں لگا دیں۔ پابندیاں اسٹیل، تعمیرات، مینوفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں لگائی گئیں۔ امریکہ پر میزائل حملے کرنے والے ایران کے 8 سینئر اہلکاروں پر بھی پابندی عائد۔ پیپلز پارٹی آرمی ترمیمی ایکٹ پر ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھی، نواز شریف نے زیادہ پھرتی دکھائی۔ پیپلز پارٹی رہنما اعتزاز احسن نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایکٹ کی منظوری سے مجھے بہت دکھ ہوا، عمران خان کہتے رہے NRO نہیں دوں گا مگر وہ دے دیا۔ کراچی پریس کلب کے صدر کے لیے ری پولنگ، ڈیموکریٹس امیدوار امتیاز خان فاران کامیاب امیدوار قرار پائے۔ امتیاز خان فاران کو 105 ووٹ سے کامیابی حاصل ہوئی۔ 10 سال کے دوران شہباز فیملی کے اثاثوں میں 450% اضافہ ہوا۔ نیب ذرائع کے مطابق 2008 میں شہباز فیملی کے اثاثے 68 کروڑ 33 لاکھ تھے جو 2018 تک 3 ارب 68 کروڑ تک پہنچ گئے۔ محکمہ انسانی حقوق سندھ کے سیکریٹری بدر جمیل کراچی میں گھر سے آفس جاتے ہوئے مبینہ طور پر لاپتہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے IG سندھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں اللہ کرے یہ ہمارا IMF کے ساتھ آخری معاہدہ ہو، لوگوں کو مسائل ہیں، وہ بہت تکلیف میں ہیں لیکن انہیں ٹیکس دینا پڑے گا، ایسے نہیں چلے گا۔ کراچی میں ہائی روف میں آگ بھڑکنے سے ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہوئے، 6 کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ زخمی ڈرائیور کا کہنا ہے کہ پیچھے بیٹھے شخص کی سگریٹ نوشی کے باعث حادثہ ہوا۔ نون لیگ کو ایک اور جھٹکا، مرید کے سے نون لیگ کے رانا خوشنود، رانا مقصود اور رانا قیصر سمور دیگر پارٹی کے کارکنان سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کر گئے۔ شمولیت کے بعد مرید کے سیاست میں کھلبلی مچ گئی۔ تبدیلی سرکار کا سال نو کا ایک اور تحفہ، آٹا پھر نایاب ہو گیا۔ آبادی ریان پورہ، حسین ٹاؤن، مرید کے اور دیگر علاقوں میں لوگ آٹے کی تلاش میں مارے پھرنے لگے۔ بعض مقامات پر انتہائی ناقص آٹے کی بلیک میں فروخت بھی ہونے لگی۔ مرید کے کی عوام نے حکومت سے مسئلے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ موسلا دھار بارشیں برسانے والا سسٹم بلوچستان پہنچ گیا۔ کوئٹہ، چمن اور ہرنائی میں کئی علاقوں میں بارش سمیت پہاڑوں پر برف باری۔ وزیر اعلیٰ جام کمال کی ریسکیو اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کراچی میں سردی مزید بڑھے گی، کل ہلکی بارش کا بھی امکان۔ چمن سمیت شمالی بلوچستان کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے کوئٹہ شاہراہ درہ کوڑک کے مقام پر برف باری کے باعث مال بردار گاڑیوں کو سفر کرنے روک دیا گیا۔ شدید برف باری کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ چمن پاک افغان بارڈر کلی لقمان میں خوشی کی تقریب غم میں بدل گئی۔ بارشوں کے باعث افسوسناک واقعہ پیش آیا، منگنی کی تقریب کے دوران کمرے کی چھت گر گئی، 5 افراد جاں بحق جبکہ 6 زخمی۔ جاں بحق اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں DNN نیوز، میں ہوں رضوان باسط۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیلی خبریں ہوں گی ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ مصطفیٰ گرین ویلی اپروو بائی SPCA، ملیر کینٹ سے صرف 5 منٹ کی مسافت پر، بالمقابل جناح ایونیو، مین موٹر وے M9 سے متصل، 120-240 گز کے پلاٹس،
मुस्तफा ग्रीन वैली सरमायाकारी के लिए हर तरह से एक महफूज प्रोजेक्ट है। 24 घंटे आर्म्ड सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, इंतहाई दिलकश लैंडस्केप, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मसाजिद, स्कूल्स, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट साइट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग ग्रीन लैंडस्केप प्लानिंग के तहत डेवलप्ड शानदार मंसूबा मुस्तफा ग्रीन वैली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 1 अरब से ज़ायद की आबादी वाले जौहरी मुल्क पर RSS की शिद्दत पसंद नज़रिए का कब्जा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में बरतानवी अखबार दी टाइम्स का एक आर्टिकल भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि RSS नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों के खिलाफ नफरत और हिंदू बालादस्ती है। इमरान खान का कहना था कि जब भी ये जिन बोतल से बाहर आया, खून रेजी का बाइस बना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को जाली सर्च ऑपरेशन की आड़ में गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। मकबूजा वादी में भारतीय लॉकडाउन को 160 रोज गुजर गए। कश्मीरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सख्त सर्दी और खुराक की किल्लत ने कश्मीरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने अपने बयान में कहा, पार्लियामेंट चाहे तो भारतीय फौज आजाद कश्मीर को हासिल करने के लिए कार्रवाई करेंगे। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि यूक्रेनी तैयारा गलती से निशाना बना। हादसा अमरीकी जारहियत की वजह से पेश आया। जवाद ज़रीफ ने हादसे की जिम्मेदारियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। हादसा इराक में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमलों के वक्त पेश आया था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की हुकूमत को अवाम तक हकायक पहुँचाने की हिदायत। ईरानी सदर का भी हादसे पर इजहार अफसोस, जबकि यूक्रेन ने माजरत मुस्तरद कर दी और मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात और हर्जाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कल ईरान का दौरा करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने इराक में मुसाफिर तैयारे के हादसे पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि कल ईरानी हम मनसब से मुलाकात में उनका मौक़िफ़ समझने की कोशिश करूंगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे। ईरान और सऊदी दौरे पर अहम बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीका ईरान कशीदगी बिगड़ती जा रही है। अमरीका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। अमरीका की जानिब से पाबंदियां स्टील, तामीरात और मैन्युफैक्चरिंग समेत टेक्सटाइल के शोबे में लगाई गई हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाबंदियों से न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम प्रॉक्सी नेटवर्क के लिए रकम के जराए बंद होंगे। ईरान से तजारत करने वाले अफराद के अमरीका में असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। अमरीका बेसिस पर मिसाइल हमले करने वाले ईरान के 8 सीनियर एहलकारों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एहतजाज एहसन ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी एक्ट की मंजूरी से मुझे बहुत दुख हुआ है। पीपल्स पार्टी कभी आर्मी तरमीमी एक्ट पर वोट देने के हक में नहीं थी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान कहते रहे, NRO नहीं दूंगा, मगर दे दिया। नवाज शरीफ किस बात पर मुल्क से बाहर गए? एहतजाज एहसन ने कहा कि नवाज शरीफ ने पैसे नहीं दिए, बल्कि 80 MNAs के वोट बेचकर NRO कर लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कभी भी सिविलियन बालादस्ती नहीं रही। कराची प्रेस क्लब के सदर के लिए रीपोलिंग की गई। इससे कबल होने वाले इंतखाब में डेमोक्रेट्स और यूनाइटेड पैनल के माबैन मुकाबला बराबर रहा था। इससे कबल होने वाले इंतखाब में पहले ही डेमोक्रेट्स सेक्रेटरी जनरल समेत बाकी तमाम नशिस्तों पर पहले ही कामयाबी समेट चुकी है, जबकि आज कराची प्रेस क्लब में कराची प्रेस क्लब के सदर के लिए होने वाली रीपोलिंग में डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार इम्तियाज खान फारान 584 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि यूनाइटेड पैनल के अहमद मलिक 479 वोट हासिल कर सके। कुल वोटर्स की तादाद 1076 थी। इम्तियाज खान फारान के सदर नामजद होने के बाद वहां पर मौजूद मेंबर्स ने जश्न मनाया और मिठाइयां तकसीम की। वाज़ेह रहे कि इम्तियाज खान फारान ने 105 वोट की बरतरी से कामयाबी हासिल की। नेब के मुताबिक शहबाज फैमिली को असासों में 10 साल के अरसे में कई गुना इजाफा हुआ है। नेब ज़राए के मुताबिक 2008 में शहबाज फैमिली के असासे 68 करोड़ 33 लाख थे, जो कि 2018 तक 3 अरब 68 करोड़ तक की सतह पर पहुंच गए हैं।
नेब ज़राए के मुताबिक सलमान शहबाज के असासे 28 करोड़ से बढ़कर 2 अरब 34 करोड़ तक पहुंच गए और हमजा शहबाज के असासे 21 करोड़ से बढ़कर 41 करोड़ हो गए। महकमा इंसानी हुकूक सिंध के सेक्रेटरी बदर जमील मुबैना तौर पर लापता हो गए हैं। SSP साउथ के मुताबिक बदर जमील की अहलिया ने उनकी गुमशुदगी से आगाह किया। उनकी अहलिया के मुताबिक बदर जमील कराची में घर से ऑफिस जाते हुए लापता हुए। बदर जमील के MC में मुबैना करप्शन पर FIR में नामजद थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े पर नोटिस लेते हुए IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुशीर तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने कहा कि हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में इजाफा हुआ है। हमारी पॉलिसी है कि बरामदात में किसी किस्म की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को मसाइल हैं, वो बहुत तकलीफ में हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान का IMF के साथ ये आखिरी मुआहिदा हो, मगर ऐसा नहीं चल सकता, अवाम को टैक्स देना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ कराची में हाईरूफ और रक्शे के तसादुम से वाक़े में एक ही खानदान के 5 बच्चों और 2 ख़वातीन समेत 8 अफराद चल बसे। जहाँ बहक अफराद शादी से वापस अपने घर सुरजानी तैसर टाउन जा रहे थे। रक्शे और हाईरूफ में तसादुम के बाद आग भड़क उठी थी। बच्चे समेत 3 अफराद भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हाईरूफ में फ्यूल टैंक नहीं था, जबकि ड्राइवर ने गाड़ी में पेट्रोल की बोतल रखी थी। गाड़ी में बैठे शख्स ने सिगरेट फेंका तो आग भड़क उठी। तपिश के बायस दरवाजे भी नहीं खोले जा सके। जहाँ बहक होने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मुरीद के नून लीग की क़यादत राना खुशनूद, राना मकसूद और राना कैसर समूर ने अपने मुतादिद कारकुनों के हमराह तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर राना खुशनूद का कहना था कि हम ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह भट्टी पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। नून लीग के रहनुमा राना खुशनूद और राना मकसूद की शमूलियत के बाद मुरीद के की सियासत में खलबली मच गई है, जबकि नून लीग के दीगर कारकुनान पहले ही PTI में शमूलियत कर चुके हैं। नया साल शुरू होते ही एक मरतबा फिर आबादी रेयानपुरा हुसैन टाउन मन्नू आबाद मुरीद के और दीगर इलाकों में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। लोग आटे की तलाश में मारे फिरने लगे हैं, जबकि बाज़ मकामात पर इंतहाई नाक़िस और गैर मयारी आटे की ब्लैक में फ़रोख्त की भी इत्तलाआत मौसूल हुई हैं। अवाम ने अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा गंदम काश्त करने वाला मुल्क है, मगर उसके बावजूद नाम नहाद मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने आटे का बहरान पैदा करके मज़ीद एक नई परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मुरीद के की अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बिला ताख़िर इस संगीन मसले का फौरी नोटिस लेकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पैदा करदा बहरान से निजात दिलाएं। इस्लामाबाद में बादल छा गए। कोयटा, चमन और हरनाई में कई इलाकों में बारिश समेत पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशें बरसाने वाला सिस्टम बलोचिस्तान पहुंच गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने रेस्क्यू इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सर्दी मजीद बढ़ेगी, जबकि कल हल्की बारिश का भी इम्कान है। चमन के कोड़क टॉप शाहरा पर शदीद बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है, जबकि डिप्टी कमिश्नर मेजर बशीर खान ने कहा है कि कोयटा शाहरा दर्रा कोड़क में तेज बर्फबारी से गाड़ियों को फिसलने का खदशा है, जिसके बायस माल बरदार गाड़ियों को सफर करने के लिए रोक दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर बशीर खान ने हिदायत की है कि मुसाफिर हजरात कोयटा चमन शाहरा पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। हैवी मशीनरी के जरिए शाहरा से बर्फ हटाने का अमल भी जारी है। चमन पाक अफगान बॉर्डर कली लुकमान में बारिश से मंगनी के प्रोग्राम के दौरान कमरे की छत गिर गई। लीवी ज़राए के मुताबिक शदीद बारिश से घर की छत गिर गई। इस अफसोसनाक वाक़े में ख़वातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जहाँ बहक जबकि 6 ज़ख्मी हुए हैं। जहाँ बहक होने वाले अफराद और ज़ख्मियों को फौरी सिविल अस्पताल चमन मुंतकिल कर दिया गया। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए।